Hello to all the students of AMCOM second year. I am Professor Sonia Digba from SSGM College. So today I welcome to all of you students in our lecture, online lecture. As okay, so as we know, all of you know that our subject advanced auditing, we have now have to completed our third chapter. Okay, in this chapter we have discussed many points, many concepts. We have discussed introduction, meaning, definition, elements of corporate governance, principles of corporate governance, report on corporate governance, issues of corporate governance, verification of compliance of corporate governance. Next, area or work of corporate governance and by audit committee, and what work which have done by audit committee, whether they have making and any kind of committee, what is the work of an auditor and what is audit committee will do, we have discussed in last lecture. Okay, and that in audit committee there has been sub points have been sub concept has been mentioned: constitution of qualified and independent audit committee. Secondly, role of audit committee, that what kind of role, whether the audit committee will done and what kind of responsibility and what kind of management work they have to guidance to their members, and how many members which have required to audit committee, and what are the roles of audit committee, and why audit committee is required for a company for working progress, and that company or that committee are registered with what kind of clauses according. So that thing we have discussed in last session. So in last session we have discussed that point, and many lectures we have taken of that subject, third chapter, sorry. So many concepts we have covered. So this is our last lecture of third chapter. So now we end this chapter here in our last lecture. So we have discussed today, the points will be: review of certain information about audit committee, powers to audit committee, and the last point will be CEO or CFO certification. Okay, so first we discuss about review of certain information about audit committee. ओके जैसे हमने यहाँ लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया कि ऑडिट कमेटी क्या काम करती है, कौन कौन से वर्किंग प्रोग्रेस, कौन कौन से वर्क्स को रिव्यू करती है, ट्रांजैक्शंस को किस तरीके से रिव्यू करना ऑडिट कमेटी के, और ऑडिट कमेटी के अंतर्गत कौन से मेंबर अपॉइंट होने चाहिए और कितने मेंबर इन ऑडिट कमेटी। देयर हैज़ बीन अपॉइंटेड 3 मेंबर्स ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, कि जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कंपनी के हैं वही एज कंसिडर्ड टू बी द पार्ट ऑफ ऑडिट कमेटी। सो ओके, सो जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं, 1 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर और क्वालिफाइड डायरेक्टर, सो दी 3 डायरेक्टर्स अपॉइंट होंगे और वो वर्क करेंगे एज एन चेयरमैन। कौन रहेगा? एज एन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर इज अपॉइंटेड एज एन चेयरमैन ऑफ ऑडिट कमिटी। तो ये हमने लास्ट रिव्यू करा कि इसमें कौन कौन से क्या है, ऑडिटर का रोल क्या है, ऑडिट कमेटी का रोल क्या है, और किन किन की क्या क्या उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वर्किंग प्रोग्रेस। सो ओके, ऑडिट कमेटी कौन कौन सी, अब जहाँ इस सेशंस में वी हैव डिस्कस कि ऑडिट कमेटी कौन कौन से पॉइंट्स को रिव्यू करती, कौन कौन सी इंफॉर्मेशन को ऑडिट कमेटी एक कंपनी के अंतर्गत रिव्यू करती है। ओके, फर्स्ट विल बी फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड ड्राफ्ट ऑडिट रिपोर्ट इंक्लूडिंग क्वार्टरली, हाफ ईयरली फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। ओके, तो ऑडिट कमेटी का काम क्या है कि वो जो ऑडिटर ने रिपोर्ट बनाई है, तो जो ड्राफ्ट रिपोर्ट, जो सब काइंड्स ऑफ रिपोर्ट पहले जो उनको ड्राफ्ट रिपोर्ट में जाती है, ड्राफ्ट रिपोर्ट में क्या है, प्रॉपर तरीके से उसमें स्टेटमेंट्स का पूरे तरीके से क्या है, सिर्फ एक टाइप की ऑडिट रिपोर्ट बनाई है, उसमें मिक्सअप इंफॉर्मेशन क्वार्टरली, जो हम क्वार्टरली रिपोर्ट्स बनाते हैं। ओके, ऑडिट रिपोर्ट, फाइनेंशियल स्टेट ऑडिट रिपोर्ट किसको कहते हैं? जब पूरी तरीके से हम लोग एक रिपोर्ट को क्लोज कहते हैं। और क्वार्टरली रिपोर्ट्स में कैसे, जैसे कंपनी 6 मंथ के अपनी रिपोर्ट बना रही है और उस रिपोर्ट्स को वो रिव्यू कर रही है और दिखा रही है कि हाँ हमारा कंपनी का प्रोग्रेस 6 मंथ में इतना था, रिव्यू उसको एनालाइज करके, तो वो उस रिपोर्ट्स को वी हैव कॉल अप कंपनी। मोस्ट ऑफ कंपनी तो वो ड्राफ्ट रिपोर्ट में, तो उसमें उसमें ऑडिटर को और ये जो ऑडिट कमेटी को क्या है, वो ऑडिटर दैट रिपोर्ट दे हैव टू सेंड इट
एज एन ड्राफ्ट टू द ऑडिट कमेटी, और ऑडिट कमेटी उस रिपोर्ट को इंक्लूडिंग चेक करेगी रिपोर्ट को कि हाँ 6 मंथ में रिकवरी रिपोर्ट हमारी कितनी है, ऑडिट कमेटी का कंपनी का पोजीशन क्या है, तो ये इन चीज़ों को रिव्यू करेंगे इन अ हाफ ईयरली रिपोर्ट में। तो ये ऑडिट कमेटी का मेन वर्क है टू रिव्यू दैट फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्वार्टरली, ओके, and half yearly. Second will be the management discussion and analysis of financial condition and result of operation. ओके, मैनेजमेंट डिस्कशन ऑडिट कमेटी का मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी। सेकेंड रिव्यू क्या है चीज़ कि मैनेजमेंट कंपनी के अंतर्गत मैनेजमेंट कमेटी है वो किस तरीके से काम कर रही है, और उनकी पोजीशन एनालाइज करना कि वो मैनेजमेंट जो यानी कि मैनेजमेंट डिपार्टमेंट है वो किस तरीके से वर्क कर रहा है, उनका डेली ऑपरेटिंग वर्क कितना है, एनालाइज करना, उन चीज़ों को रिव्यू करना, पोजीशन को एनालाइज करना, फाइनेंशियल कंडीशंस को उनके एनालाइज करना कि कितने परसेंटेज ऑफ वर्कर्स हैं, एम्प्लॉयज़ आर वर्किंग एंड हाउ मेनी hours they are calculating. So in management discussion analysis, the what kind of management do work and what kind of operation, whether they operating any kind of organization or management authority, so what kinds of resources, what kind of elements they have using, whether they analyzing the position of कंपनी और उनके रिजल्ट्स क्या हैं, और जो रिसोर्सेज कम मैनेजमेंट अथॉरिटी यूज़ कर रही है उसका आउटपुट कितना आ रहा है, रिजल्ट क्या दे रहे हैं वो रिसोर्सेज कंपनी के अंतर्गत। तो ये किस तरीके से कंपनी रिव्यू करती है टू डिस्कस। तो ऑडिटर को क्या रिस्पॉन्स, ऑडिट कमेटी की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इन सारे मैनेजमेंट वर्क को एनालाइज करना और रिव्यू करना, और अपना रिव्यू में अपना पॉइंट एनालाइज करना कि हाँ इस तरीके से ये कंपनी वर्क कर रही है। ओके, सो ऑडिट कमेटी की एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है टू रिव्यू मैनेजमेंट डिस्कशन एंड एनालाइज, मैनेजमेंट से वर्क डिस्कस करे, एनालाइज करे कि फाइनेंशियल कंडीशन कैसे है हमारी, और उसी के अंतर्गत जो रिजल्ट हमारे अच्छे हैं या नेगेटिव हैं, पॉजिटिव है नेगेटिव है, उन चीज़ों को एनालाइज करने के रिव्यू को देवे अपना। सो दिस विल बी अ सर्टेन इंफॉर्मेशन विच हैव बीन डिस्कस एंड रिव्यू बाय ऑडिट कमेटी। तो ये इन्फॉर्मेशन ऑडिट कमेटी को रिव्यू करनी रहती है। फर्स्ट, फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्वार्टरली जो रिपोर्ट रहती है, ऑडिट रिपोर्ट है क्वार्टरली के हाँ हाफ ईयर में हमारी फाइनेंशियल कंडीशन कैसी है कंपनी को, तो वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में मेंशन रहेगी, तो उसको रिव्यू करना। सेकेंडली, मैनेजमेंट से डिस्कस करना कंपनी की फाइनेंशियल कंडीशन और कौन कौन से यानी कि मैनेजमेंट को रिसोर्सेज और क्या इम्प्लीमेंटेशन करने की कौन कौन से न्यू ऑपरेशन रेजोल्यूशन की ज़रूरत है टू इम्प्रूव द कंपनीज पोजीशन। तो ये चीज़ को एनालाइज करती है मैनेजमेंट, तो उनसे क्या साथ रिव्यू करना, डिस्कस करना, इन चीज़ों को रिव्यू करती है ऑडिट कमेटी। थर्डली, रिपोर्ट रिलेटिंग टू कॉम्प्लाइंस विथ लॉस टू रिस्क मैनेजमेंट। तो अपनी जब ऑडिटर एक कंप्लाइंस रिपोर्ट बनाता है और कंप्लाइंस रिपोर्ट दे हैव टू सेंड इट टू सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया जस्ट लाइक स्टॉक एक्सचेंज। तो वो जब रिपोर्ट जो सेंड कर रहे हैं तो वो अकॉर्डिंग टू किसके लॉस के अंतर्गत होनी चाहिए, और मैनेजमेंट को जो रिस्क उस रिपोर्ट के रिलेटेड है तो वो सारे लॉस के अंडर, ताकि वो उन चीज़ों को रिव्यू कर सके। और नेक्स्ट थिंग क्या है, ये 3 पॉइंट्स हमने इसे मेंशन करे बट देयर हैव बीन 6 पॉइंट इन मेंशन। तो फोर्थ पॉइंट हमें आई हैव टेल यू दैट रिकॉर्ड्स ऑफ रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन। तो ऑडिटर को, ये ऑडिट कमेटी को क्या वर्क रिव्यू करना है कि जो रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन्स हो रहे हैं, कि जैसे पार्टी के अंतर्गत ट्रांजेक्शन, रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन्स होते हैं एज का कि इन्वेस्टर हम इन्वेस्ट कितना कर रहे हैं, तो ये जो इनके ट्रांजेक्शन्स हैं ये ऑडिटर को रिव्यू करना पड़ता है कि कितने परसेंटेज में ऑडिट कमेटी को रिव्यू करना पड़ता है कि कितने परसेंटेज में ये ट्रांजेक्शन्स ये हो रहे हैं, रिकॉर्ड हो रहे हैं, कि प्रॉपर रिकॉर्ड हो रहे हैं कि नहीं हो रहे। सो दैट काइंड ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑडिट कमेटी टू रिव्यू सम इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू द ऑर्गेनाइजेशन और मैनेजमेंट को जो भी रिगार्डिंग लेटर्स इंफॉर्मेशंस हैं और इंटरनल कंट्रोल सिस्टम इफ़ प्रॉपर वर्क नहीं कर रहा तो उसका एक लेटर सेंड करे टू द बोर्ड ऑफ और कमिटी, टू द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के हाँ दैट इंटरनल कंट्रोल सिस्टम इज़ नॉट प्रॉपरली वर्किंग एंड इंटरनल ऑडिटर विल नॉट प्रॉपर हैंडलिंग। तो दैट काइंड ऑफ लेटर्स दे हैव टू सेंड इट टू द company. So that is the work of audit committee to review that kind of work of internal control
if they find some kind of weakness in internal control, so they have to send in report or of a letter in a form of letter. तो ये एक लेटर के फॉर्म में वो सेंड करेंगे कंपनी को. ओके. एंड ऑल्सो रिव्यू. और ऑडिट कमेटी किन किन चीज़ों पे रिव्यू करेगी? अपॉइंटमेंट, रिमूवेबल ऑफ, रेम्यूनरेशन ऑफ इंटरनल ऑडिटर टू द सब्जेक्ट ऑफ ऑडिट कमेटी. तो ये ऑडिट कमेटी को रिव्यू करना है कि अपॉइंटमेंट और रिमूवेबल ऑफ इंटरनल ऑडिटर को. जब हम कोई इंटरनल ऑडिटर को अपॉइंट करते हैं और रिमूव करते हैं उनके रेम्यूनरेशन से, तो ये किसके अंतर्गत आएगा? विच हैव बीन रिव्यू बाय ऑडिट committee. So that kind of points which auditor have to review whether they analyzing, audit committee have to review whether they analyzing their company's position, and that kind of reviews makes an organization flexible whether the proper utilization of an organization. Okay, so these are the reviews which have been audit committee review. नेक्स्ट, पावर्स टू ऑडिट कमिटी. व्हाट आर द पावर्स? कि ऑडिट कमिटी की क्या 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 पावर्स हैं उन पे. फर्स्ट, इन्वेस्टिगेशन. ऑडिट कमिटी प्रॉपरली इन्वेस्टिगेट करती है सारी एक्टिविटीज़ को विद द टर्म्स ऑफ रेफरेंस रिलेटेड टू मैटर्स. कंपनीज एक्ट के तहत ही वो सारी एक्टिविटीज़ को इन्वेस्टिगेट करती है. जो जो ऑर्गेनाइजेशन के वर्क्स हो रहे हैं, इंक्लूडिंग लाइक फाइनेंशियल स्टेटमेंट, मैनेजमेंट वर्क, स्टाफ वर्क, इंटरनल कंट्रोल सिस्टम, तो इन सारी चीज़ों को ऑडिट कमिटी प्रॉपरली इन्वेस्टिगेट करती है. देन दे हैव टू गिव रिव्यू. ओके, सो ये वर्क्स को ऑडिट कमिटी हैव टू रिव्यू ऑल काइंड्स ऑफ दैट सिचुएशन. एंड इन्वेस्टिगेशन, तो ऑडिट कमिटी क्या है? इन्वेस्टिगेट सारी एक्टिविटीज़ को किसके अंतर्गत करती है? विथ टर्म्स ऑफ रेफरेंस के. इट कैन इन्वेस्टिगेट इनटू एनी मैटर विद द लॉज अकॉर्डिंग टू द लॉज. और क्या है? सेक्शन 292 के अंतर्गत कंपनीज एक्ट 1956 विच हैव बीन रेफर्ड बाय द बोर्ड. जो बोर्ड ने उनको लॉज प्रोवाइड करे हैं अकॉर्डिंग टू 292 सेक्शन के अंतर्गत ऑडिट कमिटी रिव्यू कर सकती है कंपनीज की एक्टिविटीज़ को. मैंने अभी आपको बताया कि कौन कौन सी एक्टिविटीज़ को ऑडिट कमिटी रिव्यू करती है. फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ अ कंपनी and management work analysis and financial condition of a company और internal control works को एनालाइज करती है. एंड रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करती है, प्रॉपरली एनालाइज करती है. अपॉइंटमेंट एंड रिमूवल ऑफ टर्म्स ऑफ इंटरनल ऑडिटर. सो इन सारी चीज़ों को ऑडिट कमिटी प्रॉपरली इन्वेस्टिगेट करती है अकॉर्डिंग टू द लॉ as per section 292 of the Companies Act which have been regulated by the board, so that thing will be that laws and condition which have been prescribed by the Companies Act of that company board committee, and that from that issue they have to audit committee properly investigate all kinds of company's information position, and that they have to analyze the company's information. Okay, so first power of audit committee will be investigate all kinds of related affairs to the company. जो कंपनी के अफेयर्स हैं, रिलेटेड वर्क्स हैं, उनको प्रॉपरली एनालाइज करेगी, इन्वेस्टिगेट करेगी उन सारे कंपनीज के वर्क को अकॉर्डिंग टू द कंपनीज एक्ट सेक्शन 292 विच हैव बीन इन्वेस्टिगेट और रेफर्ड बाय द बोर्ड. ओके, तो इसी के अंतर्गत ऑडिट कमिटी प्रॉपरली इन्वेस्टिगेट करती है. सेकेंड पावर है इंफॉर्मेशन उन्हें क्या कहने कि जो एम्प्लॉय की इंफॉर्मेशन रहेगी तो वो ऑडिट कमिटी प्रॉपरली एक्सेस करेगी अपने तरीके से कि क्या इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड है, उनका रिकॉर्ड किस तरीके से है, ट्रैक रिकॉर्ड कैसा है कंपनी के अंतर्गत, रिकॉर्ड्स और पर्पस क्या है इन्वेस्टिगेशन की. तो ये सारी इंफॉर्मेशन डायरेक्टली ऑडिट कमिटी को अथॉरिटीज दे हैव टू सेंड इट द पर्सनल इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग ईच एंड एवरी काइंड ऑफ एम्प्लॉय and the full access right to have been given, and the record of proper employees work information. That kinds of power of audit
कमिटी। तो ये ऑडिट कमिटी के सेकंड पावर क्या बोलेंगे कि जो इन्फॉर्मेशन उनको रिक्वायर्ड है एम्प्लॉय का वर्किंग इन्फॉर्मेशन जो एम्प्लॉय उनको रिपोर्ट करेगा, व्हाट काइंड ऑफ वर्किंग प्रोग्रेस कैसी है, इन्फॉर्मेशन रिकॉर्ड्स उसका डे टू डे वर्किंग का। तो ये पावर है ऑडिट कमिटी की टू रिव्यू और टू चेक कि हाँ किस तरीके से एम्प्लॉय वर्क कर रहा है, उसका प्रॉपरली रिकॉर्ड मेंटेन कर रहा है कंपनी का नहीं है, और पर्पस क्या है, इन्वेस्टिगेशन की पर्पस क्या है। तो ये क्या है, द पावर्स ऑफ ऑडिट कमिटी टू इन्वेस्टिगेट एंड टू रिक्वायर वॉट एवर द इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू एनी काइंड्स ऑफ मैटर दे हैव टू प्रॉपरली investigate. So these are the information we have to discuss. These are the second power. First power will be investigate each and everything. Second, information which have required by the employee or any kind of member which have been working in a company towards any situation, they have to maintain a proper information, and that information they have to record and properly analyzing what kind of purpose which have been required to investigate that thing. Legal or other advice. Legal or other advice में we have to discuss an audit committee can obtain legal or other professional advice from outside sources if necessary. तो audit committee क्या है, अगर उन्हें कोई इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत पड़ती है या किसी प्रोफेशनल पर्सन से इन्फॉर्मेशन लेनी है वर्किंग में टूवर्ड्स एडवाइस लेनी है तो वो ले सकते हैं। तो ये क्या है, एक उनकी पावर है कि वो अगर आउटसाइड थर्ड पार्टी से उन्हें इन्फॉर्मेशन कोई एडवाइस की ज़रूरत है किसी भी रिलेटेड मैटर्स के ऊपर अंतर्गत, तो ऑडिट कमिटी कैन हैव दैट लीगल अथॉरिटी। तो ऑडिट कमिटी के पास एक लीगल अथॉरिटी है कि अगर उन्हें किसी प्रोफेशनल से, और वो आउटसाइड कंपनी के अंतर्गत नहीं है और फ्रॉम आउटसाइड साइड से है और किसी आउटसाइड पर्सन और आउटसाइड रिसोर्सेज से उन्हें इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो दे हैव टेकन ओके। सो ऑडिट कमिटी दैट काइंड ऑफ पावर दे हैव टू, इफ एनी काइंड्स ऑफ इंफॉर्मेशन और एनी काइंड्स ऑफ अथॉरिटी और एनी काइंड ऑफ websites, and if they required, so they can take from, not from company, if they required from other outside from company, so they have to be taken from any other outside. Okay, so that kind of legal power which have been regulated to the audit committee by the board. Okay, so ये powers audit committee को प्रोवाइडेबल बोर्ड ने की है अकॉर्डिंग टू द कंपनीज एक्ट के तहत, कि अगर उन्हें किसी लीगल मैटर्स पे एडवाइस चाहिए किसी प्रोफेशनल पर्सन की और वो कंपनी के बाहर का है तो वो ले सकते हैं उससे, और वो भारत के रिसोर्सेज को भी यूज़ कर सकते हैं वेदर इट इज़ रिक्वायर्ड। ओके, तो ये लीगल पावर द कंपनी हैज़ बीन प्रोवाइडेड टू द ऑडिट कमिटी। लास्ट विल बी द पावर इन्विटेशन फॉर अटेंडिंग मीटिंग। सो if necessary it can invite outsider with relevant expertise to be present at its meeting. ओके, अगर ज़रूरी है कि कोई यानी कि आउटसाइडर को कंपनी के बाहर के मेंबर को जो हमें एडवाइस दे रहा है, इन्वेस्टर हो या कोई भी पर्टिकुलर प्रोफेशनल पर्सन जो ऑडिट कमिटी को एडवाइस दे रहा हो, रिव्यू कर रहा हो, तो ऑडिट कमिटी उन अदर आउटसाइड फ्रॉम कंपनी के जो आउटसाइडर को इनवाइट करेगी अपनी मीटिंग के अंतर्गत और वो प्रेजेंट रहे। तो ये एक पावर है ऑडिट कमिटी के पास कि वो किसी आउटसाइडर को भी दे हैव टू इनवाइट इन आवर मीटिंग। तो वो कंपनी के अंतर्गत जब वो मीटिंग लेते हैं, एनुअल जनरल मीटिंग हो और जनरल मीटिंग हो, तो इसके अंतर्गत उनके पास ऑडिट कमिटी के पास की पावर है कि वो डायरेक्टली इनवाइट कर सकते हैं towards outsider of the company. Okay, so that are the four powers of audit committee. First will be investigation, second information, third legal or other active, and fourth will be invitation for attending meeting. तो outsider को invite कर सकते हैं. So these are the powers of audit committee. एंड द लास्ट पॉइंट वी हैव डिस्कस नाउ, और ये इस चैप्टर का लास्ट कॉन्सेप्ट है। ओके, सो नाउ इस कॉन्सेप्ट के बाद ये हमारा चैप्टर ओवर होगा। द थर्ड चैप्टर विल बी ऑफ एडवांस ऑडिटिंग, ऑडिट कमिटी एंड कॉर्पोरेट गवर्नेंस। द चैप्टर विल बी ओवर फ्रॉम दिस कॉन्सेप्ट. Okay, so the last concept will be CEO and CFO certification.
सीईओ का आपको फुल फॉर्म सबको ऑल ऑफ यू हैव नो, सीईओ फुल फॉर्म मीन्स चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, और CFO ये सर्टिफिकेट है दैट कंपनी हैव बीन इशूड टू देयर अथॉरिटीज मेंबर्स, और ये सर्टिफिकेट अकॉर्डिंग टू लॉज के अंतर्गत तो सेबी रेगुलेटेड करती है इनको। SEBI has been regulated that kinds of certificate, and that CEO and CFO have to be reporting according to the clause, according to the rules and regulated which have been under listed SEBI. More than ever before, the owners is one of the companies and their executive particularly appointed. तो कभी भी यानी कि कंपनी के अंतर्गत मोर देन हम लोग जो है ना कि पहले के टाइम्स में भी और आजकल के टाइम में भी कंपनी सीईओ और सीएफओ को अपॉइंट करती है टू इंश्योर कि हाँ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, फाइनेंशियल रिपोर्ट को सीईओ और सीएफओ प्रॉपरली जो ट्रांसपोर्टेशन का है और काउंटिंग है उसके लिए, तो कंपनी हैव अपॉइंटेड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर और तो ये सीईओ और सीएफओ को कंपनी अपॉइंट करती है, और ये किन चीज़ों को एनालाइज करते हैं, फाइनेंशियल रिपोर्ट करते हैं, ईच एंड एवरी एक्टिविटीज़ को। ये जो सीईओ है, सीएफओ कंपनी पहले से ही अपॉइंट करती आ रही है इन देयर कंपनीज के अंतर्गत ये, और ये ट्रांसपोर्ट और जो भी डेली यूज़ है, तो सीईओ इज़ द हेड पोजीशन इन अ कंपनी। CEO or CFO is making an head position in a company. It has become important to enforce corporate governance to protect investor interest. तो ये क्या है, it has become important. तो ये the CEO and CFO committee have to very enforce to the corporate, whether they be analyzing the corporate governance system that consists of that CEO or CFO have to provide and enforce to the investor who have to take in an interest लार्ज अमाउंट। तो इन्वेस्टर जब लार्ज अमाउंट में कंपनी से इंटरेस्ट चार्ज करता है तो सीईओ और सीएफओ दे हैव टू बी प्रॉपरली एनालाइजिंग देयर interest rate, and then they have to mention a report. The SEBI has added a new clause 49 to the listing agreement. Part B of clause 49 contains the requirement of CEO और CFO certification. तो अगर SEBI ने लॉन्च किया है न्यू क्लॉज 49 टू द लिस्टिंग अग्रीमेंट, जो लिस्टिंग अग्रीमेंट इसके अंतर्गत क्या है, पार्ट 4 के अंतर्गत पार्ट बी ऑफ क्लॉज 49, जो उसके अंतर्गत लिस्टिंग अग्रीमेंट के अंतर्गत सीईओ और सीएफओ का सर्टिफिकेट इशू होता है अकॉर्डिंग टू द 49 क्लॉज ऑफ टू द लिस्टिंग अग्रीमेंट। और इस अग्रीमेंट के अंतर्गत सारी जो रिक्वायरमेंट सीईओ और सीएफओ के अंतर क्या क्या रिक्वायरमेंट है, क्या क्या इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत है, और कौन कौन से रिव्यू करता है सीईओ और सीएफओ, किन किन चीज़ों को रिव्यू करता है प्रॉपरली, तो ये सब, और इनको प्रॉपर रिव्यू करने के बाद एक सर्टिफिकेट दिया जाता है। तो वो सारी चीज़ें अभी हम वी हैव डिस्कस्ड, इट इज़ एज फॉलो वी डिस्कस। फर्स्ट, रिव्यू ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड कैश फ्लो स्टेटमेंट. So the CEO or CFO have to review the financial statement and the cash flow statement of the company for the particular accounting year. तो जो CEO और CFO कंपनी के जो मेन दे हैव चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर और चीफ ऑफिसर ऑफ दैट कंपनी, तो इनकी प्रॉपर रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, टू रिव्यू फाइनेंशियल और कैश फ्लो स्टेटमेंट। कैश फ्लो स्टेटमेंट के कैश इनफ्लो कितना है, आउटफ्लो कितना है, इस साल के अंतर्गत कितना पर्टिकुलर अकाउंटिंग ईयर है, इफ़ वी मेंटेनिंग एंड फाइनेंशियल, हम एक साल का फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर करते हैं, तो ओके, तो कंपनी का कितना इनपुट हुआ है, कितना आउटपुट हुआ है ऑफ कैश, तो इन सारी चीज़ों को सीईओ और सीएफओ रिव्यू करता है। और इन सारी चीज़ों को रिव्यू करने के बाद वो उन चीज़ों को सर्टिफाई करने के बाद, प्रॉपर स्टेटमेंट को सर्टिफाई करने के बाद, दे डू नॉट कंटेन एनी मैटरली अनट्रू स्टेटमेंट, तो वो क्या करेंगे, उनकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है सीईओ और सीएफओ की, कि इफ़ अगर कोई भी यानी कि कैश इनफ्लो और आउटफ्लो में कोई भी अगर मिस कैलकुलेशन हुआ है और स्टेटमेंट में मिस कैलकुलेटेड हुआ है, कोई भी ट्रांजैक्शन और प्रॉपरली रिकॉर्ड नहीं हुआ है, तो इन चीज़ ऑडिटर को
और ये जो सीईओ और सीएफओ है, इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि कोई भी इंफॉर्मेशन को ऐसे ही ना मेंशन करा जाए, उसको प्रॉपरली रिव्यू करा जाए और अपना जो इंफॉर्मेशन ओमिट कर दी गई है और अननेसेसरीली रिकॉर्ड नहीं हुई है उसको प्रॉपरली गाइड करे, रिव्यू करे, उन चीज़ों को, उन स्टेटमेंट को, ऑनलाइन ट्रांजैक्शन की डेट को एनालाइज करे और जो कंपनी के रिलेटेड अफेयर्स है उसमें अपना ट्रू एंड फेयर व्यू दे, so that the audit or that C or CFO has to certify और इन स्टेटमेंट को प्रॉपरली वो सर्टिफाई करे, कैश फ्लो स्टेटमेंट, फाइनेंशियल स्टेटमेंट को प्रॉपरली सर्टिफाई करके और अपना ट्रू एंड फेयर व्यू दे ऑफ अ कंपनी अफेयर्स. सो दैट इज द मेन फर्स्ट the CEO and CFO has to review. Secondly, certification about transaction. Certification about तो CEO और CFO किस सेकेंडली सर्टिफिकेट किसको देंगे, सेकेंडली ट्रांजेक्शन को, कि हाँ ट्रांजेक्शन प्रॉपरली रिकॉर्ड हो रहे हैं. और यानी कि जब भी और ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करता है CEO हैव टू सर्टिफाइड दैट देयर बेस्ट नॉलेज. तो वो अब जब ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करता है, कंपनी के ट्रांजेक्शन को एंटर करता है इन अ बुक्स, तो वो अपनी एक बेस्ट नॉलेज के अकॉर्डिंग टू हिज नॉलेज, एक्सपर्टाइज नॉलेज दे हैव टू बी यूज. तो वो अपनी एक नॉलेज यूज करेगा वेदर दे रिकॉर्डेड ईच एंड एवरी ट्रांजेक्शन्स और एनालाइजिंग मटेरियल, इनवॉइस प्राइजेस और जो परचेज लेजर, जो भी लेजर्स के अंतर्गत वो एंट्री रिकॉर्ड करेंगे, ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करेंगे और अपना सर्टिफिकेट देंगे. तो वो सर्टिफिकेट कब, जब CEO CFO देगा, whether they have properly using their best knowledge and that no transaction have been fraudulent. कि जब वो यानी कि ये रिव्यू कर लेगा कि कोई ट्रांजेक्शन में फ्रॉड मेकिंग नहीं हुआ है, एरियर नहीं है, इलीगल नहीं है, देन आफ्टर दैट थिंग रिव्यू दे हैव टू गिवन अ सर्टिफिकेशन अबाउट ट्रांजेक्शन. तो लास्ट में ही जब इन सब चीज़ों को प्रॉपरली अपनी नॉलेज से रिव्यू करने के बाद कि हाँ ट्रांजेक्शन में कोई मिसलीडिंग नहीं है, कोई फ्रॉड नहीं हुआ है, लीगली तरीके से ट्रांजेक्शन मेंशन नहीं है, तो ये चीज़ों को अपनी नॉलेज से प्रॉपरली एनालाइज करने के बाद द CEO and CFO have given a certificate about the transaction. They have to be given certificate about the ट्रांजेक्शन्स. ओके, सो सेकेंडली वो इन चीज़ों को ऑडिट, ये जो CEO एंड CFO हैव टू मेकिंग एन आंसरेबल टू सर्टिफाइड अबाउट द ट्रांजेक्शन. एंड थर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी में वो क्या रिव्यू करेगा, रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या रहेगी कि उसकी CEO और CFO की क्या एक्स्टेब्लिश करे, कोई भी रिसोर्सेज, न्यू आइडियाज एक्स्टैब्लिश करें कि किस तरीके से इंटरनल कंट्रोल सिस्टम को हम कंट्रोल करें, उसको इंटरनल कंट्रोल सिस्टम प्रॉपरली वर्क करे, इफेक्टिवली वर्क करे कंपनी के अंतर्गत, और सब चीज़ों को प्रॉपरली ऑडिटर किन किन चीज़ों पे इंफॉर्मेशन को, ऑडिटर को कौन कौन सी चीज़ों की रिक्वायरमेंट है, ऑडिट कमेटी किस तरीके से वर्क कर रही है और कंपनी के अंतर्गत सरप्लस है क्या डिफिशेंसी है, इन चीज़ों को प्रॉपरली डिज़ाइन करना. अगर डिफिशेंसी है, कंपनी फेस कर रही है, सरप्लस फेस नहीं कर रही, तो डिफिशेंसी को रिमूव करने के लिए कंपनी को कौन कौन से रिसोर्सेज की ज़रूरत पड़ेगी. तो ये CEO और CFO की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि इन सारी चीज़ों को रिव्यू करें और अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को एक्सेप्ट करें. ओके, सो दिस इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ CEO एंड CFO. और लास्ट पॉइंट है विल बी, फोर्थ पॉइंट विल बी information to the auditors for the audit committee. So okay, information CEO CFO की में क्या है रिस्पॉन्सिबिलिटी है टू स्पेसिफाई कि हाँ ऑडिटर को कौन कौन सी इंफॉर्मेशन की रिक्वायरमेंट है जब वो ऑडिटिंग करता है. ऑडिटर जब ऑडिटिंग करता है तो उनको किन किन चीज़ों की रिक्वायरमेंट है, किन किन इंफॉर्मेशन की उन्हें रिक्वायरमेंट है, कि स्टेटमेंट जब उन्हें एनालाइज करना है, ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करना है, डाटा कौन कौन सा उनको सिस्टमेटिकली. ओके, तो ये जब ऑडिटर को रिक्वायरमेंट जो ऑडिटिंग की रहती हैं इंफॉर्मेशन की, तो जो CEO है ये प्रॉपरली ऑडिटर को सेंड करेगा और ऑडिट कमेटी को भी वो इन्फॉर्मेशन दे हैव टू सेंड इट ऑल काइंड ऑफ information which have been indicated to the CEO and CFO committee.
So they have to specify that they have to indicate it to the auditors and the audit committee about any significant changes in internal control over the financial reporting during the significant changes in accounting policy during the end year, and the same have been disclosed in the notes to the financial statement. तो ओके, जैसे अभी हमने डिस्कस करा कि जो भी इंफॉर्मेशन उसने रिक्वायरमेंट होंगे रिलेटेड टू एनी काइंड ऑफ सिग्निफिकेंट चेंजेस इंटरनल कंट्रोल सिस्टम्स की के चेंज में जो है फाइनेंशियल रिपोर्टिंग कंपनी का किस तरीके से है चल रहा है, तो इस कंपनी के जो ऑडिटर इन सारी चीज़ों को रिव्यू करता है, तो जो इन्फॉर्मेशन ऑडिटर को रिक्वायरमेंट रहेगी, द CEO एंड CFO ऑफ कंपनी दे हैव टू गिवन to the auditor and audit committee whether they have to require any kind of information. Okay, so now we have completed our this chapter. Okay, the audit committee. So ये इसके अंतर्गत हम लोगों ने ये पॉइंट कॉन्सेप्ट हम लोगों ने डिस्कस करें, ये सारे कॉन्सेप्ट वी हैव टू क्लियर. फर्स्टली आई हैव रिपीट कि हम लोगों ने कौन कौन से सेशंस में किए, क्योंकि इनके लेक्चर्स मेरे इस थर्ड चैप्टर के सारे लेक्चर आई हैव पब्लिश ऑन यूट्यूब. सो इफ़ यू हैव एनी क्वेरी रिगार्डिंग दिस चैप्टर यू कैन वॉच माई वीडियोज़ ऑन यूट्यूब ऑफ दिस रिलेटेड ऑडिट कमिटी एंड कॉर्पोरेट गवर्नेंस चैप्टर. इन फर्स्ट लेक्चर में हमने यूट्यूब पे पब्लिश करा है. फर्स्ट लेक्चर वी हैव डिस्कस इंट्रोडक्शन, मीनिंग, डेफिनेशन एंड एलिमेंट्स. सो इन एलिमेंट्स देयर आई हैव बीन 4 पॉइंट. एलिमेंट्स के अंतर्गत 4 पॉइंट है. फर्स्ट, सिस्टमैटिक ऑफ मैनेजमेंट, इंक्लूजन, सेंसिटिविटी एंड मिक्सचर. सेकेंड सेशन में वी हैव डिस्कस प्रिंसिपल्स ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस. इन प्रिंसिपल्स ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस देयर हैव बीन 5 पॉइंट्स. इन थर्ड lecture we have discussed report on corporate governance. So report on corporate governance, in report on corporate there have been 9 points we have discussed. ये थर्ड सेशन में हम लोगों ने ये डिस्कस करा था रिपोर्ट और कॉर्पोरेट गवर्नेंस. थर्ड लेक्चर में हमने ये डिस्कस करा था. इन फोर्थ लेक्चर वी हैव कंप्लीटेड इश्यूज ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस. In fifth lecture we have discussed verification of compliances of corporate governance. So verification of compliances of corporate governance के अंतर्गत हम लोगों ने यहाँ पे ये पॉइंट डिस्कस करे थे. इसके अंतर्गत हमारे 8 पॉइंट्स हैं. इन सिक्स लेक्चर वी हैव डिस्कस्ड एरिया और वर्क ऑफ ऑडिट कमिटी. ओके, और ऑडिट कमिटी के क्या वर्क हैं, शेयर होल्डर्स किन किन चीज़ों पे रिपोर्ट करता है, रिव्यू करता है कंप्लाई के वेरिफिकेशन को. और 6 लेक्चर्स के अंतर्गत हमने ये डिस्कस एरिया ऑफ वर्क और ऑडिट कमिटी एंड ऑडिट कमिटी कॉन्स्टिट्यूशन. इन 7 लेक्चर वी हैव डिस्कस रोल ऑफ ऑडिट कमिटी एंड ओके, एंड दिस इज अवर लास्ट 8th lecture we have review about in certain information required by audit committee. In this lecture, last lecture, we have discussed powers to audit committee and lastly CEO और CFO. और CEO और CFO की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, किन चीज़ों को उन्हें वर्क को एनालाइज करना और सर्टिफिकेट इशू करना चाहिए प्रॉपरली. सो इन चीज़ों को रिव्यू करके क्या करना है, CEO और CFO की रिस्पॉन्सिबिलिटी, वर्किंग रिस्पॉन्सिबिलिटी, और दैन दे हैव टू इशू बाय सेबी हैव रेगुलेटेड एंड सर्टिफिकेट टू द according to the SEBI, Securities Exchange Board of India. So now I thank you to all of you students for hearing me in this session or lecture. We have completed this chapter now. So in third advanced auditing we have completed 3 chapters. So in next lecture we have discussed about our 4th chapter. Okay, so thank you to all of you students.